Good morning, ladies and Good morning, ladies and gentlemen, and dear students. With this melodious rendition of Tarana, the official anthem of Zakir Hussain Delhi College, I extend a warm welcome to this online open house on understanding Common University Entrance Test (CUET) for undergraduate admission, organized by Zakir Hussain Delhi College, University of Delhi. I am Ananya Bandyopadhyay, Assistant Professor at Zakir Hussain Delhi College, and I'm delighted to welcome all of you here this morning. Zakir Hussain Delhi College is a heritage institution with more than 300 years of history behind it. Our college has an immense diversity of students across cultures and nationalities. The college provides our students with ample opportunities for growth. In the past, our students have excelled not only in academics but also in sports, arts and culture, and several other fields. The college regularly organizes conferences, workshops, debates, Model United Nations, memorial lectures by distinguished scholars, and film shows to provide exposure to students beyond their syllabus and improving their communication, organizational, and leadership skills. Students' development in the college is supported by our highly qualified, multi-talented, and dedicated faculty. The college has the best NCC wing of the University of Delhi, where cadets regularly win several laurels every year. The institution encourages students to explore their interests and talents in different fields through engagement in various societies, clubs, co-curricular activities, and sports. Zakir Hussain Delhi College is committed towards spreading knowledge and creating scientific temper, together with promoting secular and progressive values. With this very brief overview of our college, we now begin with the proceedings. It is my privilege to welcome Professor Narendra Singh, Principal Zakir Hussain Delhi College. Principal Sir is a professor of physics. He has over 19 years of experience in teaching and research. His field of research is atomic and molecular physics, specializing in atomic structure calculations of complex ions. Professor Singh has published more than 30 research papers in journals of international repute and in conference proceedings. He has also conducted research projects funded by University of Delhi and International Atomic Energy Agency. With this very concise introduction, I now request our principal, Professor Narendra Singh, to deliver the welcome address. Sir, please. नमस्कार। आज के अपने इस ओपन हाउस में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि प्रोफेसर बलराम पानी जी, अभी कुछ समय पहले ही बात हुई उनसे, तो यूनिवर्सिटी में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, उसमें व्यस्त हैं, लेकिन उन्होंने कहा जैसे ही उसमें समय मिलेगा तो बीच में एक बार वो हम सबको ज्वाइन करेंगे। साथ ही हमारे इस ओपन हाउस में अपने विशेष अतिथि रिस्पेक्टेड डीन स्टूडेंट वेलफेयर प्रोफेसर पंकज अरोरा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही आज का जो विषय CUET और इसका जो एडमिशन की सारी प्रक्रिया है, जिसकी जानकारी हम सबको अपनी मैडम डीन एडमिशन प्रोफेसर हनीफ गांधी जी से मिलने वाली है, उनका भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और ये भी आशा है कि हम सबको आज के इस ओपन हाउस से बहुत लाभ मिलेगा। ना केवल विद्यार्थियों को तो जानना ही है कि किस प्रकार फॉर्म भरने हैं, क्या प्रक्रिया चल रही है, साथ साथ ये शिक्षकों में भी था कि हमें एडमिशन करना है, इस बार किस प्रकार से रहेगा, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उस सब की जानकारी भी आज मैडम डीन एडमिशन से हमें मिलने वाली है। अभी डॉक्टर अनन्या जी ने बताया ही सारा अपने कॉलेज का जो इतिहास है वो किस प्रकार से रहा है। ना बहुत पुराना कॉलेज है, एक समृद्ध इतिहास इस कॉलेज का रहा है, जो एक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र ऐसा बनकर दिल्ली कॉलेज के नाम से प्रारंभ में रहा और बाद में जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज ऐसा नाम ये आया। ये दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रारंभिक 3 कॉलेज हैं, जब दिल्ली विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ उस समय 3 कॉलेज ही इसके साथ जुड़े थे,
क्योंकि प्रारंभिक 3 कॉलेजों में से है, एक सेंट स्टीफन रहा, हिंदू कॉलेज रहा और साथ में दिल्ली कॉलेज। ऐसे करके जो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रारंभ होने वाले 3 कॉलेजों में से एक अपना ये जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज है। अभी सारी जानकारी डॉक्टर ने दी है, फिर भी जो इसमें बहुत सारे कोर्सेज की जानकारी दी इस प्रकार रहा। साथ ही जो अपने कुछ एलुमनाई इसके साथ जुड़े रहे हैं उनके भी कुछ नाम, बहुत सारे हैं लेकिन कुछ नाम विशेष रूप से ध्यान दिलाना चाहूंगा। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, आप सबको ध्यान ही होगा, अभी कोरोना काल में काफी हेल्थ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम देखा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। आप भी इसी कॉलेज के विद्यार्थी रहे। लेट मिस्टर जैन दीक्षित जी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे, फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। पंकज वोरा जी, लेट अली सरदार जाफरी जी, डॉक्टर पीके दवे जी जो एम्स के डायरेक्टर रहे। तो ऐसे एक बहुत लंबी लिस्ट है जो अपने एलुमनाई रहे हैं और अपने इस कॉलेज में एनसीसी, एनएसएस, क्या है कि हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं सभी के लिए, लेकिन इस अवसर का लाभ हम थोड़ा लेते हैं कि अपने कॉलेज की कुछ जानकारी वो भी आ जाए, ये पीआर अपने कॉलेज के लिए भी हो जाए। कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो कुछ लाभ हमें भी मिले, तो ऐसा कुछ जानकारी हम अपने कॉलेज की दे रहे हैं। तो अपने कॉलेज में जो एनसीसी और एनएसएस की एक्टिविटीज, एनएसएस का देखेंगे जो तारुण्य का प्रोग्राम है वो ऑल ओवर इंडिया फेमस है एनएसएस के प्रोग्रामों में। तो प्लेसमेंट सेल भी यहाँ बहुत अच्छा है जो एनुअल जॉब फेयर ऐसे करके ऑर्गेनाइज करता है। तो इन सभी शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अपने चीफ गेस्ट, कोलीग्स और जो विद्यार्थी जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है उन सबका स्वागत है। आगे के लिए मैं डॉक्टर अनन्या जी से अनुरोध करूंगा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you very much, Principal Sir, for the encouraging words. Our honorable chief guest today is Professor Balram Pani, Dean of Colleges, University of Delhi. Professor Pani is the principal of Bhaskaracharya College of Applied Sciences, University of Delhi, and Dean of Colleges, University of Delhi. He has an MPhil and doctorate degree in environmental sciences from Jawaharlal Nehru University and has several years of teaching and research experience. Professor Pani has headed multiple innovation projects sponsored by Delhi University and other funding bodies. And one of his projects was endowed with the Most Promising Innovation Award. Professor Pani has authored many books on chemistry, science and technology and environmental education. He is also life member of academic societies like the Indian Science Congress Association, International Association of Engineers, Indian Chemical Society, to name a few. With these words, I now request our chief guest, Professor Balram Pani, to address the audience. अभी उन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया है, बीच में जैसे ही ज्वाइन करते हैं। All right, sir. All right, sir. So I'll proceed. It is my privilege to welcome Professor Pankaj Arora, Dean, Students Welfare, University of Delhi. Professor Pankaj Arora is a professor of education at Central Institute of Education, University of Delhi. He has over 30 years of teaching experience. His field of specialization is pedagogy of political science, social science education, adolescence education, and democratic education in India. Professor Arora has authored many books, published several research papers in peer-reviewed journals, and is presented in various seminars and conferences. He is member and subject expert of many professional societies and institutions. Professor Arora also has multiple project grants. I request Professor Pankaj Arora to address the audience. Since he has a meeting at UGC, so he would address the audience for only a few minutes. Professor Arora. सबको नमस्कार. Thank you, Dr. Ananya, for such wonderful introduction. Chief guest in absentia, Professor Balram Pani ji, Principal Zakir Hussain College, Professor Narendra Singh, my colleague, Dean Admissions, Professor Hanif Gandhi, Joint Dean Students Welfare, Professor Tuteja, colleagues from Zakir Hussain College, other colleges, scholars, students, and parents. I am sure this open house
with regard to CUET, Central Universities Entrance Test 2022, is going to be a great help to the people who are struggling to find ways. CUET एक ऐसा मिशन है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से एक स्ट्रेंथ पाया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने जो एक डिबेट खासकर हमारी यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में काफी टाइम से चल रही थी कि बहुत सारे बोर्ड, अगर मैं ठीक हूं, डॉक्टर गांधी कैन करेक्ट मी, 62 बोर्ड्स हमारी कंट्री में, स्टेट एजुकेशन बोर्ड एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल एजुकेशन बोर्ड्स हैं. आई थिंक दैट 62. इतने सारे जब बोर्ड काम करते हैं तो कोई पैरामीटर कितना ही स्ट्रिक्ट और कितना ही फर्म हो, बट इट कैन नॉट मेंटेन पैरिटी इन करिकुलम एंड प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, एंड दिस हैज बीन अ ग्रेट चैलेंज. यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जब मेरिट बेस्ड एडमिशंस चल रहे थे कुछ टाइम से मेरा मतलब बड़े लंबे समय से, मुझे नहीं याद कब से ये शुरू हुआ था, लेकिन मुझे ये याद है कि 1986 में जब क्लास 12th करके मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लिया था तो मेरिट बेस्ड एडमिशन ही हुआ था. तो लगभग 35 साल से तो मैं इस प्रोसेस को देख रहा हूँ, इसके चैलेंजेस को समझ रहा हूँ एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर एंड later as part of administration. Now this education policy has paved way for this wonderful beginning of providing equal opportunities to everybody. Equal opportunities मैं इसलिए कह रहा हूँ, पहले हम equality की बात करते थे, equal chances मिलेंगे, अब equity के साथ opportunities मिलेंगी. एक ही मैदान है खेलने का, एक ही करिकुलम है, एक ही प्रोसेस है, एक ही टेस्ट है, और उस टेस्ट में आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, और उस परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, जो भारत की 45 यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें दाखिले के लिए प्रोसेस इनिशिएट करना है. सो दिस इक्विटी बेस्ड प्रोसेस इज गुड फॉर एवरीबडी, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर टीचर्स, फॉर पेरेंट्स, फॉर कम्युनिटी इन जनरल. अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि जो CUET है, इसका करिकुलम क्या है. बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जैसे बताया गया, प्रोफेसर गांधी आपको इसकी डिटेल बहुत बारीकी से माइक्रो लेवल डिटेल्स भी समझाएंगी. मैं सिर्फ एक फ्रेमवर्क की तरह ब्रॉड गाइडलाइन देके अपनी बात खत्म करूंगा. CUET का करिकुलम कोई नया नहीं है. 12th क्लास के बच्चों को जो 12th के एग्जाम्स देने जा रहे हैं, उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी की जाकिर हुसैन कॉलेज की तरफ से शुभकामनाएं एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने की, और साथ ही साथ ये चिंता से मुक्त होने की कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस टेस्ट है ये कुछ अलग नहीं होगा. 12th के एग्जाम्स के कॉन्टिन्यूएशन में जून में शायद एग्जाम खत्म होंगे और जुलाई फर्स्ट वीक में ये एग्जाम होगा CUET. तो ये 12th क्लास के करिकुलम को ही बेस बनाकर, NCERT की टेक्स्ट बुक्स को ही बेस बनाकर इस पेपर का स्ट्रक्चर सोचा गया है, तैयार किया गया है. तो स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है. 12th की जो पढ़ाई आप शुरू कर चुके हैं पिछले 6 महीने से सेकंड सेमेस्टर के लिए, और उससे भी पिछले 6 महीने जो फर्स्ट सेमेस्टर भी पढ़ा था, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि CUET का करिकुलम 12th का टोटल करिकुलम है. फर्स्ट सेमेस्टर आप दे चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, आप शायद उससे टच में भी ना हो, लेकिन अब CUET के लिए आपको उसे दोबारा से रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि CUET का सिलेबस 12th क्लास का कंप्लीट सिलेबस है, ना कि सिर्फ सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर. तो ये बात पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान रखनी चाहिए. दूसरी बात, क्योंकि NCERT की टेक्स्ट बुक्स इसका आधार बनने वाली हैं, तो आपको कहीं किसी तरह का प्रेशर नहीं लेना चाहिए. उसके लिए हमारी एडमिशन ब्रांच ने काउंसलिंग हेल्पलाइन स्टार्ट की हैं. DSW ऑफिस स्कूल्स में जाके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वेबिनार्स करने को तैयार है. जाकिर हुसैन कॉलेज ने इनिशिएटिव लिया है. कल हमारे वाइस चांसलर सर ने एक वेबिनार इनिशिएट करवाया एडमिशन ब्रांच के साथ. तो ये सब इनिशिएटिव्स कम्युनिटी तक पहुंचने के, पेरेंट्स तक पहुंचने के, सोसाइटी तक पहुंचने के, और किसी भी आपके संकट को, किसी भी आपकी दुविधा को एड्रेस करने का एक अटेम्प्ट है, और ये सक्सेसफुल रहेगा.
और एनसीईआरटी का जो टेस्ट होगा एमसीक्यू बेस्ड, कंप्यूटर असेसमेंट बेस्ड, जिसमें मल्टीपल चॉइस के कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एक फिक्स पीरियड में करना होगा। और एक छोटा सा जो भ्रम है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्ट्रेंथ है, that we allow people to change their stream even after class 12. They can change their subjects as well as stream. तो ये दोनों ऑप्शंस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की स्ट्रेंथ रहे हैं, these are not going to be affected by this CUET based entrance examination. ये बिल्कुल लगातार चलने वाला है। जो स्टूडेंट्स अपना स्ट्रीम किसी भी कारण से बदलना चाहते हैं, कुछ विषयों को बदलना चाहते हैं, वो ऑप्शन जैसे 2021 के एडमिशंस में खुले हुए थे, ठीक उसी तरह 2022 के एडमिशन में भी खुले हुए हैं। तो किसी तरह का पैनिक होने की, स्ट्रेस होने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग दिल्ली में हैं वो पर्सनली विजिट करके, हेल्पलाइन पे बात करके, या जो एडमिशन ब्रांच ने एक डायलॉग डिस्कशंस का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसके माध्यम से अपनी बातचीत जारी रख सकते हैं। फॉर्म भरते टाइम कोई गलती ना हो, इसके लिए भी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। तो ये सब तैयारी इसलिए है कि हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ किसी बिना परेशानी के, बल्कि ग्रेसफुल तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अपने एडमिशन को अर्न करके कॉन्फिडेंस के साथ वापस आए और इस प्रोसेस को बिना किसी रुकावट के पूरा करें। माय गुड विशेस टू ऑल द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, और टीचर्स के लिए खासकर, जैसे टुटेजा जी ने कहा, नगेंद्र जी ने कहा कि टीचर्स के भी कुछ कंसर्न्स हैं, तो टीचर्स के कंसर्न्स को भी इस वीडियो में, और जितने भी वीडियो वेबिनार्स चल रहे हैं उनको एडमिशन ब्रांच, अगर फिर से मैं हनीफ जी से अप्रूवल लूंगा कि एडमिशन ब्रांच की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल रहेंगे, ताकि आप जब भी चाहें अपनी सुविधा अनुसार इनको देख सकें और इंटरेक्ट कर सकें। With these words, my good wishes for this webinar, and I am sure this webinar will help parents and society in general to crack CUET. Thank you very much. Thank you very much indeed, Professor Arora. I now welcome Professor Haneed Gandhi, Dean Admissions, University of Delhi. Professor Haneed Gandhi has a doctorate degree in education from University of Lucknow and is a professor of education at Central Institute of Education, University of Delhi. Professor Gandhi has published over 30 research papers in peer-reviewed journals and has presented in various seminars and conferences. Professor Gandhi has supervised many research scholars towards their M.Ed, M.Phil, and PhD degrees. She also has multiple research project grants to her credit. With this brief introduction, I request Professor Haneed Gandhi to address the audience. She would be talking about Introduction to CUET and admissions in undergraduate courses of Delhi University. Members of the audience who have joined us through YouTube are requested to post their queries in the chat box. Queries will be taken up after the talk. Over to you, ma'am. Thank you, Dr. Ananya, for such a lustrous introduction. Pankaj sir is also here, and both of us will agree because both of us are from the same department, and that's a privilege to, and it's a matter of pride for both of us that from Faculty of Education, both of us are now taking care of admissions in University of Delhi. For this illustrious introduction that you made, it is like a nostalgic thing for both of us. क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आके कुछ हम जो एकेडमिक्स भूल जाते हैं वो आपने हमें रिमाइंड करा दिया with your introduction. I wish to thank Zakir Hussain College for taking this initiative of a leading initiative of bringing out awareness with respect to CUET among the society, and this credit of course goes to Dr. Naren Singh who is heading the institute. नमस्कार सर, और आपको बहुत बहुत बधाई। हमें बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स का सहयोग चाहिए है जिससे हम CUET और दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके बारे में लोगों को अवगत करा पाए। Thank you so much, sir. Thank you, Gurpreet sir, for taking again this initiative. He has always been Gurpreet sir को पहली एडिशन में जुड़े हुए थे और हम उनसे काफी सलाह शुरू से ही लेते रहे हैं। And my humble gratitude to our Professor Balram Pani in absentia, who's always there to guide us, and of course Professor Pankaj Arora ji, who's here for us for a little while as he's engaged in somewhere else. Thank you so much, sir, for setting the stage for me
and motivating people on how to fill in the form, and the initiatives with the University of Delhi is doing collectively with the guidance of the Students' Welfare and the Admission Branch. Our motto is to orient and bring awareness to as many people as we can. Yesterday only from Dean Students Welfare, an initiative was taken in some rural areas of Delhi, nearby Delhi, where the team was sent to orient people from the rural areas कि वो CUET का कैसे भरे और कैसे करे. तो हम सब मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय में ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके इसके बारे में अवेयरनेस जाए with on the platform through MTA and from Delhi University platform. As sir pointed out, कल हमने एक अपना फर्स्ट वेबिनार भी लॉन्च किया था और मुझे बहुत ही खुशी है ये कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करके कि कल तकरीबन 2,500 लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े थे थ्रू आवर वेबिनार, और अभी अभी मैंने जब YouTube चेक किया तो 10,000 लोग हमारे वीडियो को देख चुके हैं. जो हमने कल वेबिनार किया था उसको 10,000 लोग अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और लोग वेबिनार देख चुके हैं. तो इस तरह की जब हम इनिशिएटिव लेते हैं और लोग उसको सराहते हैं तो बहुत मोटिवेशन मिलता है. And your college is again taking a lead in spreading this awareness. So kudos to all of you who have taken this initiative of inviting us and through your platform spreading this information on CUET and admissions in University of Delhi. एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है जो मैंने बनाई है. ये प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट वही है जो मैंने कल भी प्रेजेंट की थी, बट उसे थोड़ी सी छोटी कर ली है बिकॉज यहाँ पर टाइम थोड़ा सा कम होगा. यहाँ मैं थोड़ी ज्यादा बात करूंगी दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है उसके ऊपर. अधिक जानकारी अगर आप देखना चाहे तो आप हमारा वो वेबिनार देख लीजिएगा जो कल पोस्टेड है. और भी हम बहुत वेबिनार्स करने जा रहे हैं. This week again we are going to do another webinar which is under pipeline, and many colleges are also have come forward to do similar webinars. It's a great initiative, and I think this is through this collective platform we'll be able to reach out maximum people and benefit the schools. Schools are also now approaching to do webinars for their students. So let me just brief you about for 2-3 minutes I'll brief you about this CUET or Common University Entrance Test, and then subsequently I'll move on to briefing you about the admissions in University of Delhi. जो CUET का जो इनिशिएटिव है वो ऑफ कोर्स एक गवर्नमेंट बेस्ड इनिशिएटिव है. इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022. ये एक ही टेस्ट है जो NTA करा रहा है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है, और इस स्कोर की मान्यता जो है सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए होगी. तो आप किसी भी सेंट्रल, देयर आर 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया एंड ऑल यूनिवर्सिटीज, central universities, it is mandatory for all the central universities to do admissions only through CUET score. Apart from that, there are many state universities who have also joined NTA in this in taking credit of in taking the scores of CUET. I realized yesterday when I checked, I saw 22 state universities have already joined in. Many more are still joining, and some private universities are also going to use only the scores of CUET for their admission test. तो कहने का मतलब ये है कि आप इस बार इस टेस्ट को जरूर दें. सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड देकर ही तसल्ली ना कर लें. आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्लास 12 की बोर्ड के बाद आपको एक पेपर और देना है. हालांकि ये पेपर मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जिसके बारे में भी आपको मैं बहुत अवगत करवाने वाली हूँ. ये पेपर आसान होगा, बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी इस पेपर में, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, लेकिन पेपर तो देना पड़ेगा ताकि आप एडमिशन ले पाए दिल्ली विश्वविद्यालय में. इसके साथ साथ दिल्ली में जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे JNU भी इन्हीं के CUET के माध्यम से एडमिशन करेंगे. अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उन्होंने भी CUET को अपना लिया है और जामिया भी शायद अपनाने वाली है. तो कहने का मतलब ये है कि आप CUET से दिल्ली की जितनी भी मेजर यूनिवर्सिटीज है उसमें एडमिशन के लिए आपको CUET देना अनिवार्य है. CUET का जो पेपर है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो पेपर है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है. इसमें 3 खंडों में ये पेपर विभाजित है. खंड A जो है वो भाषाओं पर आधारित है. वहां आपके पास 2 खंड हैं, 1A एंड 1B. 1A जो है वो मीडियम बेस्ड है जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, और 1B जो है उसमें 20 लैंग्वेजेस है. 33 लैंग्वेजेस दिल्ली विश्वविद्यालय ने इनको सामान्य रखा है. आप पेपर किसी भी 33 लैंग्वेजेस में दे सकते हैं.
दूसरा खंड जो है CUET का वो है डोमेन स्पेसिफिक यानी सब्जेक्ट बेस्ड। जो सब्जेक्ट जो विषय आपने स्कूल में पढ़े थे, हमारा आग्रह है आप उन्हीं विषयों को चुने। यहाँ पर एटलीस्ट दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल ने ये निर्णय लिया है कि जो सब्जेक्ट बच्चे ने क्लास 12th में पढ़े हैं उन्हीं को हम कंसिडर करेंगे CUET के माध्यम से। तो जो सब्जेक्ट्स आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हैं उनका चुनाव, उन सभी का चुनाव आप CUET में लीजिए, उन सभी में पेपर दीजिए इन 27 सब्जेक्ट्स के आधार पर। और उसमें हमारा अनुरोध है कि आप एक भी सब्जेक्ट छोड़े नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता एंट्रेंस टेस्ट में किसमें आप बेटर करेंगे किसमें नहीं करेंगे। जो आपने कक्षा 12वीं में पढ़े उन सब में आप पेपर जरूर। तीसरा खंड जो है वो जनरल टेस्ट है यानी कि रीजनिंग बेस्ड है। इस खंड में आपसे न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्लास 10th की जो सिंपल मैथमेटिक्स एबिलिटी है, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, इसके आधार पर है। मेरे आपसे हालांकि तीनों में से कोई भी खंड जो है वो कंपल्सरी नहीं है। आप चाहे तो लैंग्वेज भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो डोमेन स्पेसिफिक भी छोड़ सकते हैं, आप चाहे तो जनरल टेस्ट भी ना ऑप्ट करें। बट माय पर्सनल रिक्वेस्ट इज कि आप जनरल टेस्ट भी लें। So by doing so, you would be eligible for many other programs of University of Delhi. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका कोई भी चांस छूटे नहीं, किसी भी कोर्स के लिए आप इनएलिजिबल ना हो। उसके लिए आपसे अनुरोध है कि आप अपनी एक भाषा जरूर चुनें। One language is compulsory for admissions to University of Delhi. इसके साथ साथ आपके कम से कम 4 विषय जरूर होने चाहिए। हम उनमें से 3 लेंगे, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम CBSE जो दिल्ली के क्षेत्र के आसपास के हैं, वो ज्यादातर CBSE से पढ़े होंगे और उन्होंने उम्मीद है 4 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, इंक्लूडिंग फिजिकल एजुकेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो आपने पढ़ा उनमें सब में पेपर दीजिए। फिजिकल एजुकेशन पढ़ा उसमें भी पेपर दीजिए, म्यूजिक पढ़ा उसका भी प्रावधान है परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर, उसका भी पेपर दीजिए, और जनरल टेस्ट भी ले लीजिए। तो इससे हमारे तकरीबन आपके 85 to 90% कोर्सेज में आप एडमिशन लेने के लिए तैयार। थर्डली, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट CUET को लेकर है वो आपका स्लॉट का आप किस तरह से चुनाव करेंगे। स्लॉट 1 जो है CUET का, उसमें आप कोई भी भाषा 1A से चूज कर सकते हैं यानी मीडियम बेस। तो स्लॉट 1 जब आप देखेंगे तो उसमें 13 लैंग्वेजेस आपके पास लिस्ट हो जाएगी, उनमें से किसी एक का आप चुनाव कर लीजिए। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, इस तरह की भाषाएं उसमें हैं। तो फर्स्ट लेट में आपके पास 1A है। फर्स्ट स्लॉट में आप कोई भी 2 विषय चूज कर सकते हैं। स्लॉट 1 में आप फिर जनरल टेस्ट चूज कर सकते हैं। तो CUET का जो स्लॉट 1 है उसमें आप एट द मोस्ट 4 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं, एक भाषा 1A से, 2 विषय डोमेन स्पेसिफिक से और जनरल टेस्ट। स्लॉट 2 जो है उसमें फिर आप 2 भाषाएं और चूज कर सकते हैं और 4 सब्जेक्ट ले सकते हैं, या फिर आप एक भाषा ले सकते हैं और 5 विषय ले सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ जब आपने स्लॉट 1 लिया तो आप अप टू 4 सब्जेक्ट्स में पेपर दे सकते हैं। स्लॉट 2 अगर आप चुनेंगे तो अप टू 5 सब्जेक्ट्स में या पेपर्स में आप टेस्ट दे सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप 9 विषय या 9 पर्चों से ज्यादा नहीं चुन सकते। या तो आप एक भाषा 6 विषय और जनरल टेस्ट ले लीजिए, 2 भाषाएं 5 विषय और जनरल टेस्ट। तो ये आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के CUET। आप तसल्ली से बैठकर अपना स्लॉट 1 और स्लॉट 2 चूज कर लीजिए और सब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ पर एक बहुत सारी हमारे पास आशंकाएं आ रही है और सवाल आ रहे हैं कि क्या हमें प्रोग्राम बेस्ड विषय चुनने चाहिए, यानी अगर मैं BA ऑनर्स फिलॉसफी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो क्या मैं फिलॉसफी का पेपर दूं। हमारा आपसे निवेदन है कि ऐसे मत देखिए। आपने जो कक्षा 12वीं में पेपर दिए उनमें टेस्ट दीजिए, हम उनके सब्जेक्ट के आधार पर आपका मेरिट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोग्राम को देखकर सब्जेक्ट मत चुनिए, जो आपने कक्षा 12वीं में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स का चयन कीजिए और उन्हें जरूर दीजिए, और जो जनरल टेस्ट है उसे भी दीजिए। जो फीस है वो स्लॉट 1 में अप टू 4 सब्जेक्ट्स की जनरल कैटेगरी के लिए है 450, OBC EWS 650, सॉरी, OBC EWS के लिए 600 एंड PW के लिए है 550। और अगर आप दूसरा स्लॉट लेते हैं तब भी यही फीस है। तो या तो आप 650 रुपए देंगे या 1300 रुपए देंगे जो जनरल कैटेगरी है, और इसी तरह प्रोपोर्शनली बाकी कैटेगरीज की भी फीस होती है। तो आप स्लॉट 1 में अगर दे रहे हैं और 4 विषयों का चयन करें तो आप 650 देंगे,
और अगर आप एक भी सब्जेक्ट या एक से ज्यादा अप टू 5 सब्जेक्ट्स या 5 पेपर्स आप स्लॉट 2 से ले रहे हैं तो आपको 1300 रुपए देने पड़ेंगे। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी। सब्सिक्वेंटली आप देख सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसमें आपकी कितनी फीस है। मेरे ख्याल से तो सीयूईटी के बारे में ये जानकारियां, हाँ, जब आप उसके 4th या 5th पेज पे आएंगे सीयूईटी का फॉर्म फिल करने पे, तब आपको प्रोग्राम्स और यूनिवर्सिटीज का चयन करना होगा। आप यूनिवर्सिटीज का पहले चयन कर लीजिए, जिस जिस यूनिवर्सिटी में आप इच्छुक हैं या हो सकते हैं इच्छुक एडमिशन के लिए। अगर आपको थोड़ी सी भी आशंका है, आपको नहीं क्लैरिटी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जाना चाहेंगे, मेरा तो सजेशन होगा, पर्सनल सजेशन है कि जितनी यूनिवर्सिटीज आप चाहें उतनी चुन लीजिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी आपको लगता है पास में, वो चुन लीजिए। आपको लगता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं और आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, उसे भी चुन लीजिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी तो चुनेंगे, इसके साथ साथ अगर आप हरियाणा यूनिवर्सिटी में चुनना चाहें तो उसे भी चुनिए। जब आप यूनिवर्सिटी का चयन करेंगे, उसके साथ साथ आपके पास एक सिमिलर टैब खुल जाएगा प्रोग्राम चूज करने का या कोर्सेज चूज करने का जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं। जितने चाहे कोर्सेज सिलेक्ट कर लीजिए, कोई पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ सब्जेक्ट के लिए है, कोर्सेज के चयन के लिए, प्रोग्राम्स के चयन के लिए कोई पैसा नहीं है। तो आराम से जितने कोर्सेज चाहे उतने चुनिए, जितनी यूनिवर्सिटी से उनका चयन कीजिए और कोर्सेज का चयन। आपके जितने सर्टिफिकेट है उन्हें भी तैयार रखिए, डॉक्यूमेंट्स है, रिजर्व कैटेगरी का है, माइनॉरिटी का है, अगर आप स्पोर्ट्स कोटा में अप्लाई करना चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस में अप्लाई करना चाहते हैं, कश्मीरी माइग्रेंट है, PMSSS में आना चाहते हैं, ये सब दस्तावेज आपके पास तैयार होने चाहिए। हमने एक वीडियो ट्यूटोरियल डाला है जिसका लिंक मैं अभी यहाँ पर आपकी चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। हमने एक वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार किया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरा जाए वो हमारी वेबसाइट admission.uod.ac.in जो हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय की है, मैं आपसे चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। ADMISSION admission.uod यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली .ac.in। इस वेबसाइट पे हमने बहुत सारे, अभी तो एक ट्यूटोरियल है अंग्रेजी में, हिंदी का ट्यूटोरियल भी शायद इस वीकेंड तक आ जाएगा जिसमें बहुत ही विस्तार से हमने बताया है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आप एक फाइल अगर बड़ी है उसको छोटा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी फाइल जो आप अपलोड कर रहे हैं वो उन्होंने कहा है कि 10 KB के अंदर होनी चाहिए और आपकी फाइल बड़ी है, तो आप कैसे छोटा कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमें जानकारी। कल जो हमने वेबिनार किया था उसका भी पूरा लिंक YouTube पे अवेलेबल है, उसे भी एक बार इस टॉक के बाद आप चाहें तो देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, पूरा ध्यान से सुन लीजिए, इसमें बहुत विस्तार से हमने पूरी जानकारी दी। इसके साथ साथ जो आपको CUET का फॉर्म भरना है उसका है प्लेटफॉर्म है CUET-samarth.ac.in। मैंने ये भी चैट बॉक्स में डाल दिया है और ये हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। मैं आपको वेबसाइट का एक क्विक लुक दिखा देती हूँ। So this is, can you see the website? Ananyaman, can you see the website? Yes, ma'am. So this is the website of University of Delhi, admission.uod.ac.in. So everything that you need with respect to admissions is readily available here. We have given the link to CUET-samarth.ac.in जहां आपको सारी जानकारी मिलेगी। सिलेबस की भी पंकज सर ने बात की थी, मैं उसके बारे में भी आपको और जानकारी दे दूंगी। यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में सारी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद हमने ये जो ग्रे बॉक्स है इसमें आपको ये भी बता दिया कि आप CUET में इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखना चाहें तो वहां क्लिक कर लीजिए CUET का। अगर आप CUET का सिलेबस देखना चाहें तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर एप्लीकेशन गाइड अगर आपको चाहिए तो यहाँ क्लिक कर लीजिए। तो आप अगर हमारी वेबसाइट पे लैंड करेंगे तब भी आपको सारी इंफॉर्मेशन CUET की अवेलेबल हो जाएगी। ये हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन का, इसे भी पढ़ लीजिए। 76 पेजेस का बुलेटिन है, बहुत ही वाइब्रेंट है और ये सब हमारे बच्चों ने बनाया है। बहुत तस्वीरें डाली गई हैं ताकि आपको बोरियत महसूस ना हो बुलेटिन पढ़ते पढ़ते। ये भी एक बार देख लीजिए। और ये लिंक है हमारी लाइव स्ट्रीम जो हमने कल किया था वेबिनार उसका, यूट्यूब का, इसको आप कभी भी देखना चाहे देख लीजिए। इसी के नीचे जब आप आएंगे तो ये हेल्पफुल रिसोर्सेज है, इन्हें आप जब टाइम मिले देखते रहिए ताकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलती जाए। इसमें हम बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस डालने वाले हैं
सबसे पहला जो अभी हमने डाला है वो इंग्लिश में है, हाउ टू फिल द रजिस्ट्रेशन form of CUET. If you have a doubt, please look at this video carefully. It's a step-by-step instruction, 33 minutes video, which gives you a step-by-step instruction on how to fill the form. So every information, whatever you need with respect to admissions in University of Delhi is available at this one-stop website, and this will then link you to all the other things of NTA as well as CUET. I think this is what I could say of CUET. Yes, Pankaj sir had said about syllabus. This you should be clear of. Yeah, syllabus जो है CUET का वो सर ने बताया, and I reiterate कि syllabus जो है वो NCERT के ऊपर है, कोई भी सिलेबस बाहर से नहीं है। बहुत सारे बच्चों में आशंकाएं थी कि हमारा अगर CBSE में कुछ पोर्शन डिडक्ट हुआ है तो उसको कैसे होगा, उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। द गवर्नमेंट एंड CUET हैज बीन वेरी केयरफुल एंड दे नो अबाउट दिस एस्पेक्ट, तो उन्होंने इस पेपर को चॉइस बेस्ड बनाया है। सेक्शन 1 और 2 में आपके पास जब आप CBT मोड पे आएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की मोड में आएंगे, तो आपकी स्क्रीन पर 50 क्वेश्चंस दिखाई जाएंगे, आपको सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने, तो आपके पास चॉइस। इसी तरह जब आप सेक्शन 3 करेंगे या जनरल टेस्ट करेंगे, तब आपके पास 75 क्वेश्चंस आएंगे और आपको सिर्फ 60 अटेम्प्ट करने हैं 1 घंटे के अंदर। तो यू हैव चॉइस, फर्स्ट सिलेक्ट द क्वेश्चंस दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद एंड स्टार्ट डूइंग देम। Of course, there is a negative marking, so be careful that you do not end this trap. Be very confident. Since there is a choice, please make a reasonable decision on the questions that you attempt. Syllabus भी सारा CUET की वेबसाइट पे दिया हुआ है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस दिया हुआ है CUET की वेबसाइट पे। तो जब आप cuet.samad.ac.in पे जाएंगे तो ऊपर के रिबन में उनका इंफॉर्मेशन बुलेटिन और उनका सिलेबस भी दिया हुआ है, सिलेबस भी देख लीजिए। उन्होंने पहले ही बता दिया कि इसकी तैयारी कीजिए और इतना ही पढ़िए, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। Now I think I'll make my presentation with respect to admissions in University of Delhi. May I? Sure, ma'am. Please go ahead. Now I'll tell you a few things about University of Delhi and about our eligibilities, what you need to be careful of. Can you see my screen? Yes, ma'am. It's visible. So as I just said that admissions to undergraduate program in all the all the central universities, state universities and other universities will be done through CUET. तो आपने चाहे सेंट्रल बोर्ड से पढ़ाई की है, जैसा कि पंकज सर ने बोला था 66 बोर्ड हैं, इनफैक्ट देयर आर मेनी मोर बिकॉज बहुत सारे अदर बोर्ड्स भी हैं जिनको हम देखते हैं और वो शायद हमारी लिस्ट में ना हो। जितने भी रिकग्नाइज बोर्ड हैं, देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ बीइंग रिकग्नाइज्ड, सेंट्रल बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन लेने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, वो है CUET। एंड दिस ट्रांजिशन फ्रॉम द मेरिट बेस्ड सिस्टम, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत सारे, सर ने बताया 66 बोर्ड है, अब हम वन टेस्ट वन नेशन पॉलिसी पे आ गए हैं। आप एक ही एंट्रेंस देंगे जिसके आधार पर आपका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। ये जो एडमिशन जो प्रक्रिया है CUET का फॉर्म फिल करने की, वो अभी 6 मई तक अवेलेबल है। 6 अप्रैल को NTA ने शुरुआत की थी और 6 मई तक चल रही है। मुझे NTA ने बताया शायद ये डेट बढ़ने की, लेकिन अभी आप 6 मई ही लीजिए, 6 मई तक आपको ये फॉर्म भरना है। इसके बारे में मैं बात कर चुकी हूँ, CUET के डिजाइन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तकरीबन 73 प्रोग्राम्स है, शायद 1-2 प्रोग्राम्स ऐड और डिलीट हो जाए। इन सभी प्रोग्राम्स की लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ CUET के बेसिस पे ही होगी। जो हमारी पहले बेस्ट 3 और बेस्ट 4 का प्रावधान था वो हमने अभी भी रखा है, यानी जो हमारी स्पिरिट थी पहले की दिल्ली विश्वविद्यालय की कि हम बच्चे की बेस्ट परफॉर्मेंस को कंसिडर करेंगे, हम उसे अभी भी ऑनर कर रहे हैं। हम अभी भी बच्चा जब CUET का एग्जाम देगा तो उसके जो बेस्ट मार्क्स होंगे उन्हीं को कंसिडर करेंगे। आई थिंक इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है, बहुत ही इंक्लूसिव स्टेप है दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए।
हमारी सारी ही एडमिशन जो हैं एक्सेप्ट स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, जो हमारा एक और बॉडी है जहां हम डिस्टेंस मोड में कराते हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग या एसओएल जिसे आप जानते हैं, या नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड या एनसीवेब जिसे हम कहते हैं, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पुराने सिस्टम यानी मेरिट बेस्ड सिस्टम से एडमिशन ले सकते हैं। और जो फॉरेन के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके लिए फॉरेन रजिस्ट्री ने कुछ प्रावधान किए, वो उन्हीं के थ्रू आएंगे। उनके लिए सीयूईटी देना अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं है, यानी एसओएल, एनसीवेब और जो हमारे फॉरेन नेशनल्स हैं, उनके लिए सीयूईटी देना अनिवार्य नहीं है। हम उनके मेरिट बेस पे एडमिशन करेंगे। एलिजिबिलिटी जितनी भी हमारी है वो सिर्फ सीयूईटी के स्कोर्स पर ही आधारित है। चाहे आप किसी भी सुपर न्यूमररी सीट्स में आए, ईसीए में आए, स्पोर्ट्स में आए, कश्मीरी माइग्रेंट में आए, पीडब्ल्यूडी में आए, सीडब्ल्यू, पीएम, ट्रिपल एस, आप सीयूईटी में आपका अपीयर होना मैंडेटरी है या कंपल्सरी। कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है जब आप स्ट्रीम चेंज करेंगे। यानी कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी पढ़ी है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी में ही पेपर दीजिए। इसके बाद आप चाहे तो आप हिस्ट्री ऑनर्स में चाहे आना चाहे तो आप आइए, आपका कोई भी डिडक्शन नहीं होगा। हम आपके मार्क्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ही आधार पर आपकी चॉइस जो होगी, जब आप प्रोग्राम की चॉइस देंगे कि आप हिस्ट्री ऑनर्स में लेना चाहते हैं, हम इन्हीं मार्क्स को देखेंगे और इसके आधार पर मेरिट बनेगी फॉर हिस्ट्री ऑनर्स। तो पहले जो हमारे यहाँ +2 -2 होता था किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को चूज करने का, अब वो सब कुछ मान्यता नहीं रखेगा। आपने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हो, आप अपनी चॉइस बताइए किस प्रोग्राम में, और अपनी प्रेफरेंस बताएंगे किस प्रोग्राम में आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। हम आपके जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो उसके बेस्ट 3 बेस्ट 4 के आधार पर। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट फॉर साइंस स्ट्रीम, मतलब साइंस वाले तो ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में आ सकते हैं, लेकिन अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं पढ़ी तो आप साइंस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वो तो जैसे पहले था वैसे ही होगा। कोई भी गैप ईयर का आपको डिसएडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर आपने पिछले साल मिस कर दिया था किसी कारणवश, पढ़ाई नहीं पूरी कर पाए, हमें मालूम है पिछले 2 साल से देश के पूरा विश्व जो है बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड कोविड की सिचुएशन से जा रहा था, कई बच्चों की पढ़ाई में नुकसान हुआ है। इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा। आपने किसी भी साल में पहले पेपर दिया था, इस साल आप सीयूईटी का एग्जाम दीजिए और सीयूईटी के माध्यम से आप दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। हमारी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो बहुत ही सिंपल है। आप क्लास 12 आपको पास होना चाहिए किसी भी एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपने क्लास 12 में कितने परसेंट है उससे भी हमें कोई लेना देना नहीं है। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ अ सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मुझे जानकारी है कि क्लास 12 के एग्जाम सभी बोर्ड में ऑलमोस्ट शुरू हो चुके हैं। सीबीएसई शायद 26 तारीख से शुरू कर रहे हैं और बाकी अन्य बोर्ड जो है, राजस्थान बोर्ड वगैरह, मेरे पास डेटा है कि वो बहुत जल्द, उनके तो एग्जाम खत्म भी शायद होने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है सभी बोर्ड में अक्रॉस कंट्री एग्जाम हो जाएंगे और बच्चे पास हो जाएंगे जब तक हमारा सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। मैं आपको अपनी जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी से उनसे अवगत करवा देती हूँ। जैसा कि सीयूईटी में सेक्शन 1 और 1A और 1B उसमें 33 लैंग्वेजेस हैं। हम सभी लैंग्वेजेस को कंसिडर कर रहे हैं और वो हमने लिस्ट ए में लिखी है। आप 33 लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, लेकिन एक लैंग्वेज जरूर चूज कर लीजिए क्योंकि वो हमारी सभी प्रोग्राम में सभी प्रोग्राम में काउंट होगी, चाहे मेरिट में हो चाहे ना हो, लेकिन उनका कुछ ना कुछ प्रावधान जरूर है। जो 27 सब्जेक्ट्स हैं डोमेन 2 के, वो हमारे 2 पार्ट्स में विभाजित हैं, लिस्ट B1 एंड लिस्ट B2। तो आप देखेंगे आपके लेफ्ट हैंड साइड में 18 सब्जेक्ट्स हमने लिस्ट किए हुए हैं और 9 सब्जेक्ट्स हमने लिस्ट किए हुए हैं लिस्ट B2 में। ये 27 सब्जेक्ट्स जो है ये सभी हमारे डोमेन 2 को कवर करते हैं। इन्हें आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। तो हमारे, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। बैचलर्स ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी के जो हमारे बीएससी प्रोग्राम्स हैं, वहाँ आपके पास सीयूईटी स्कोर में 3 सब्जेक्ट का काउंट होगा। देख लेते हैं वेबिनार में क्या वेबिनार है ना सारा, किसी एक लैंग्वेज में लाना अनिवार्य है। उदाहरण के लिए अगर आप बीएससी बायोलॉजिकल साइंसेज, बॉटनी और जूलॉजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पीसीबी का पेपर दीजिए, और अगर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या पॉलीमर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप पीसीएम में एडमिशन आपका दिया जाएगा, पीसीएम के स्कोर्स के आधार पर। कहने का मतलब ये है, अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ी, आप उसका पेपर दीजिए और इन कोर्सेज के लिए आ सकते हैं, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। पीसीएम के आधार पर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर
और अन्य सब्जेक्ट्स के जैसे भी है। मैं आपको सिर्फ यहाँ उदाहरण दे रही हूँ, डिटेल्स के लिए आप प्लीज हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जरूर दें। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास कोई एक लैंग्वेज पढ़ी होनी चाहिए, पेपर देना चाहिए। गणित का पेपर अनिवार्य है। इसके साथ आप कोई भी 2 विषय चुन लीजिए जिसमें से एक हमारी B1 से हो। एनवायरमेंटल साइंसेस में आपके पास 2 कॉम्बिनेशन है, या तो आप PCB के हम कॉम्बिनेशन कंसिडर करेंगे या PCM। तो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स चारों में पेपर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसका मैथ्स का और बायोलॉजी का बेस्ट देख लेंगे और उसको हम ऐड कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो कॉमन रहेगा, बिटवीन बायोलॉजी और मैथ्स देख लेंगे आपका किसमें बेटर परफॉर्मेंस है, उसमें हम आपको मेरिट तय कर लेंगे, आपका बेस्ट खोल। अब कुछ बात हमारे बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी BA प्रोग्राम। यहाँ पर आपके लिए एक भाषा और 3 सब्जेक्ट में पेपर देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हमारी BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, ज्योग्राफी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, आप किसी भी एक विषय को किसी भी एक भाषा को चुन लीजिए। कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए सेक्शन 2 में से, लेकिन ध्यान रखिए उनमें से जो आप 3 सब्जेक्ट लेंगे उनमें से कोई 2 हमारी लिस्ट B1 से जरूर होनी चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट चाहे B1 से हो चाहे B2 से हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपका एक भाषा, 3 सब्जेक्ट सेक्शन 2 में से, जिनमें से एटलीस्ट 2 जो है वो B1 से होने चाहिए। जो हमारे BA ऑनर्स लैंग्वेजेस हैं जैसे कि BA ऑनर्स फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, पर्शियन, इन सब में हम उस भाषा पे जिस भाषा में आप एडमिशन चाहते हैं उसको भी थोड़ा सा प्रेफरेंस देंगे। उदाहरण के लिए BA ऑनर्स संस्कृत जो है, संस्कृत CUET के लिस्ट A और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों में है। तो हमने सभी कॉम्बिनेशंस निकाले, कॉम्बिनेशन 1, 2 and 3. These are all the possible combinations that one can make from Sanskrit, either from list section 1 और section 2. तो अगर आपने संस्कृत का पेपर सेक्शन 1 से दिया है या सेक्शन 2 से दिया है तो आप कॉम्बिनेशन 1, 2 या 3 में आ पाएंगे। मान लीजिए आपने संस्कृत नहीं पढ़ी है क्लास 12 में और पेपर भी नहीं दिया संस्कृत का, फिर भी आप संस्कृत ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बिनेशन 4 चूज करिए, यानी कोई भी एक भाषा ले लीजिए और कोई भी 3 सब्जेक्ट ले लीजिए सेक्शन 2 में से, जिनमें एटलीस्ट 2 हमारे B1 से होने चाहिए। ऑफ कोर्स जिसने संस्कृत पढ़ी होगी या पेपर दिया होगा संस्कृत का, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कॉम्बिनेशन 1, 2 और 3 से हम सीटें पहले भरेंगे और अगर सीटें बच जाएंगी तो उनको मौका दिया जाएगा जिन्होंने संस्कृत का पेपर नहीं दिया है और BA ऑनर्स संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। अब ये जो एल्गोरिथम है या ये जो एक रूल है ये हमारी सभी भाषाओं पे जाता है, जैसे BA ऑनर्स पंजाबी। और एक हमारा बहुत ही सॉट आफ्टर कोर्स है BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स। इसमें आप मैथ्स का पेपर देना अनिवार्य है, आप गणित का पेपर जरूर दीजिए CUET का। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं अप्लाइड मैथ्स को लेकर। आप अप्लाइड मैथ्स में आपने पढ़ा है या मैथ्स कोर मैथ्स पढ़ा है या बिजनेस मैथ्स पढ़ा है या कोई भी और मैथ्स A, मैथ्स B पढ़ा है, आप CUET में मैथ्स का पेपर दीजिए। इसका सिलेबस भी दिया हुआ है और इसमें अप्लाइड मैथ्स को देकर भी कुछ उन्होंने ट्विकिंग की है। आप उसका सिलेबस देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैथ्स का पेपर CUET का 2 पार्ट्स में है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस तो उन्होंने जेनेरिक रखे हैं, 15 क्वेश्चंस, और 35 क्वेश्चंस उन्होंने आप चूज कर सकते हैं या मैथ्स से लीजिए, कोर मैथ्स के पेपर से, या अप्लाइड मैथ्स। तो जिन बच्चों ने अप्लाइड मैथ्स पढ़ा है वो मैथ्स का पेपर दीजिए और अप्लाइड मैथ्स का पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करिएगा CUET में। So you can come for our economics honors even if you have studied applied maths in class 12. BCom ऑनर्स जो है इसमें या मैथ्स चूज कर लीजिए या अकाउंटेंसी, ये 2 सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है। बाकी चीजें वही है, एक लैंग्वेज लीजिए और अन्य कोई भी 2 सब्जेक्ट। हमारे जो DU JAT के पेपर्स होते थे, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज या BBA, वहां पर भी मैथ्स लेना कंपलसरी है। और यहाँ से हमारे सेक्शन 3 जो है उनके बारे में मैं बातचीत शुरू कर देती हूँ। ये जो पेपर आप देख रहे हैं इनमें आपके पास सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन है, गणित, सेक्शन 3 और कोई भी एक भाषा। तो आपने एक सब्जेक्ट मैथ्स देना अनिवार्य है, सेक्शन 3 यहाँ पर देना अनिवार्य है और कोई भी एक भाषा। बाकी भी जो हमारे ओपन एलिजिबिलिटी प्रोग्राम्स है, जैसे BA प्रोग्राम, BWalk के हमारे जो प्रोग्राम है, BCom पास है,
बीएससी होम साइंस जनरल है, इन सब के लिए हमारे ये 2 कॉम्बिनेशन मान्यता रख रहे हैं। कॉम्बिनेशन 1 अगेन बेस्ट ऑफ 4 इंक्लूडिंग 1 लैंग्वेज, या कॉम्बिनेशन 2 कोई भी एक भाषा, कोई भी एक विषय, डोमेन सब्जेक्ट, और सेक्शन 3, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से हम आपका बेस्ट स्कोर ले लेंगे। यहाँ पर एक लास्ट लाइन है प्रोरेशन की, ये आपको जरूर बता दूं, क्योंकि कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2, जब हम कॉम्बिनेशन 2 में सेक्शन 3 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेक्शन 3 की वेटेज थोड़ी सी अलग है। आप यहाँ 60 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें कुछ प्रोरेशन करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2 को इक्वलाइज करने के लिए हमें कुछ प्रोपोर्शनेटली लेना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रोपोर्शनेट करेंगे और इसके बारे में और जानकारी आपके पास आ जाएगी हमारे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स के। हमारे जो दो तीन प्रोग्राम है, हिंदी पत्रकारिता, बीए ऑनर्स जर्नलिज्म, ये आपके पास ये कॉम्बिनेशन रहेंगे। अगर हिंदी पत्रकारिता में एडमिशन चाहते हैं तो हिंदी भाषा में पेपर देना अनिवार्य है, और कॉम्बिनेशन 1 या कॉम्बिनेशन 2 में से आप चूज कर सकते हैं। इसी तरह जो हमारा बीए ऑनर्स जर्नलिज्म है, उसमें इंग्लिश कंपल्सरी होगी, और ये सब कॉम्बिनेशन सेम है। बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जो प्रोग्राम है, वो क्योंकि एनसीटीई की रेगुलेशंस पर आधारित है, वहां वो आपसे कहते हैं कि 50% आपका क्लास 12th में आना अनिवार्य है। उसके साथ साथ हमारी जो प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी वो सेम है, बेस्ट 4, एक भाषा और 3 सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 2 ऑफ सीयूईटी। जो बीए ऑनर्स म्यूजिक और फिजिकल एजुकेशन है, ये कंबाइंड स्कोर देखा जाएगा सीयूईटी का और परफॉर्मेंस बेस्ड का। 50% सीयूईटी का स्कोर और 50% परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट होगा। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट की अभी जानकारी और क्या होगी, किस तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड के मार्क्स लेंगे, वो हम आपको और आगे देते जाएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से आपका पूरा का पूरा जो अटेंशन है वो सीयूईटी पे होना चाहिए। इसके बाद परफॉर्मेंस बेस्ड के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक प्लेटफॉर्म खोलेगा, जहां से आपको परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए बताया जाएगा। हो सकता है वो सर्टिफिकेट्स के आधार पर हो सकता है वो ट्रायल्स के आधार पर हो सकता है वो परफॉर्मेंस के आधार पर, हो सकता है वो इन सबके कॉम्बिनेशन के आधार पर हो। तो ये जानकारी आपको हम बाद में देते जाएंगे जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे। ये कुछ इलस्ट्रेटिव जो हम बना रहे हैं और बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। इन्हें भी हमने इसीलिए बनाया ताकि अगर आप एलिजिबिलिटी नहीं समझ पाए तो डायग्राम के माध्यम से आप समझ पाए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा है, अगर आप एडमिशन चाहते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए, तो ये आपकी एलिजिबिलिटी है। आप फिर सीयूईटी समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करिए। अगर आपने इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और एग्रीकल्चर में टेस्ट दिया है, तो आपके पास जो ऊपर के 7 कॉम्बिनेशन है वो बनते हैं और नीचे के 3 कॉम्बिनेशन है। जो ऊपर के 7 कॉम्बिनेशन है वो तो हम कंसिडर करेंगे, नीचे के 3 कॉम्बिनेशन बीए ऑनर्स इंग्लिश के लिए मान्यता नहीं रखेंगे। हो सकता है कहीं और आप यूज कर सके, लेकिन फॉर बीए ऑनर्स इंग्लिश these will not be considered। हम आपका हाईएस्ट स्कोर देखेंगे आउट ऑफ these 7 combinations which will get formed through this subject, T1, total 1, total 2, total 3, जो 7 कॉम्बिनेशन में से हम बेस्ट स्कोर देखेंगे और उसके आधार पर हम आपका एडमिशन करेंगे। बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, एक हमारी एडमिशन की वेबसाइट है, हमने लॉन्च की है, हमारा बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, चैटबॉट फैसिलिटी हमारी ऑन है। चैटबॉट हमारे एक आज तो शायद नहीं चल रही होंगी क्योंकि शनिवार है, तो मंडे टू फ्राइडे 9:30 to 5:30 अगर आप कुछ भी सवाल चैटबॉट में, अभी आपको दिखा देती हूँ क्या फैसिलिटी है, उसमें आपको विद इन 1 या 2 मिनट्स आपको जवाब आ जाएगा। हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स इस पे काम कर रहे हैं। और हमने इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको दिखाया, ये भी बहुत जल्दी हम आपके लिए डाल देंगे हमारी वेबसाइट पे। वीडियोस और एनिमेशंस आर अंडर प्रिपरेशन, और बहुत सारे ओपन हाउसेस और वेबिनार जैसे कि अभी आप खुद अटेंड कर रहे हैं, ये बहुत सारे पाइपलाइन में, बहुत सारी कॉलेजेस भी कर रहे हैं, और हम एडमिशन ब्रांच के थ्रू भी बहुत सारे ओपन हाउसेस और वेबिनार्स कर रहे हैं। Thank you, and now we can take for discussion. There is one thing that I would like to share with respect to chatbots. I'll just share that, and let me just move out of my screen. Okay, so in a minute I'll show you how the chat box function. और अगर कोई बच्चा इस समय बैठे होंगे तो शायद वो जवाब भी दे देंगे, क्योंकि हमारे कुछ वॉलंटियर स्टूडेंट्स हैं जो Yeah, Ananya, some of the students are here, so they can ask question. You can invite them. Gurpreet sir, 1 minute. Let me just show the chatbot facility.
So this is the chatbot facility. आप यहाँ right में देख रहे होंगे, right corner में we are here. This is the chatbot facility. आप इस पे कोई भी question लिखेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा. So you can type, can I register for CUET, and you will get a response. So estimated time is 1 minute. Within 1 minute, somebody from our team will give you an answer. So this is a facility that we have provided with respect to CUET and with respect to admissions, and you will get a reply to this. And I request Zakir Hussain College to please give us some volunteers, sir. Naren sir, Gurpreet sir, please send us some volunteers. We need volunteers to handle the admissions. Sure, For ma'am. things like this, for handling the chatbots, for handling the tutorials. Naren sir, please give us some volunteers to help us in the admission process. Definitely, ma'am. Thank you, Professor Gandhi, for enlightening us about various aspects of CUET. It is time now to address some queries. I request members of the audience to ask any queries that they have. Yeah, Jyotsna is there. Jyotsna Gaur. Good afternoon, sir. And thank you, ma'am, for giving clarity to all of us about CUET. But the thing is that some of the students, they have filled this form, I think in the last days, and committed some mistakes in filling the forms, either selecting the courses or universities or domain-specific subjects. So what is the option available, how they can rectify those errors or mistakes committed by them? Ma'am, as you know, this test is being conducted by the National Testing Agency. On our own, we've also got the similar request. We've also requested NTA to open an edit window, and they have kindly agreed to also. Very soon, I think they will open an update or an edit window, because they also understand that this is happening for the first time, and children do tend to make mistakes. So I'm sure they're going to open an edit or an update window very soon. They know this, and we've also communicated. We are in constant touch with them, and we've communicated them. I'm sure they will take care of this. तो अगर आपने भर दिए, घबराइए नहीं. NTA जरूर खोलेंगे, एक प्लेटफॉर्म जरूर खोलेंगे रेक्टिफिकेशन. Thank you so much, ma'am. Thank you. Taruna Sanjeev, you may ask your query. Thank you, ma'am. A very pleasant and enriching afternoon to all of you. Hanit ma'am, my question is, as a teacher, some concerns are there, though you people are doing wonderful job, but as we are sailing in the same boat, it's already very difficult for the students. These 2 pandemic years, they have already been very harsh to everybody, especially these students. So they have been, am I audible, ma'am? Yes, you are. There was some disturbance. Okay. So, ma'am, my concern is that for the past 2 years, the students, they have been conditioned with that subjective pattern. Not 2 years, but since beginning, we have been taking. And though it's very good that this MCQ thing and the objectivity is there, but the thing is that how you can judge how you can claim that this test is going to assess the subjective aptitude of the children, A. B, why not there has been a coordination between the CBSE and the university. So same students will be appearing for the exam as subjective in this term 2 exam, and then they will be coming for that objectivity for CUET. So this is little going to increase the anxiety level. Plus there is no like how we can help them, since we are also not aware of how to prepare them. That's my question. Thank you, ma'am. Thank you. Very valid. And of course, these are genuine concerns of all of us. Let me first tell you that as this test is being conducted by NTA. We are only partners, and we are spreading awareness of CUET, but Delhi University is concerned only about the admissions in Delhi University. Now, coming to your questions with respect to performance of the students, NTA is well aware of this,
And they have also are closely coordinating with all the boards, with CBSE, in fact, even with state boards. I know that they have been, they have done a very rigorous exercise in coming out with this. Also, I want to point out to you that NTA has also established some test practice centers, and they're going to come out with mock test also. So if you read their bulletin of information, page number 66, मैंने ये कल अपने वेबिनार में भी बताया था, they are coming up with test practice centers or TPCs, which they so called, and they are about to establish many such TPCs in and around many localities. तो वहाँ उन्होंने कहा है आप हमें अपना रिक्वेस्ट भेजिए, हम आपको TPCs बता देंगे कि आपकी लोकेलिटी के आसपास कहाँ है. वो तकरीबन 600 सेंटर्स बना रहे हैं और इन 600 सेंटर्स के आसपास कोई ना कोई TPC जरूर एस्टैब्लिश कर रहे हैं. Of course, this is a first time thing. There is a level of anxiety. There are going to be apprehensions, but these apprehensions, I feel that अभी तो आप एक सब्जेक्टिव बेस के ऊपर जा रहे थे और अब आप ऑब्जेक्टिव बेस पे आ रहे हैं. ऑब्जेक्टिव बेस इज मच इजियर गिवन द चॉइस ऑफ क्वेश्चंस. 40 questions out of 550 questions. I think that is a brilliant concept to come up, that you are, even in objective, you have a choice to attempt. This anxiety should reduce because the syllabus is also minimized. सिलेबस भी बहुत कम है और आपको बहुत ज्यादा टाइम भी मिल रहा है. शायद एग्जाम जो है मैंने देखा था, शायद अभी अप्रैल एंड मई मिड में सभी एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं और ये टेस्ट शायद जाके जुलाई फर्स्ट या सेकंड या थर्ड वीक में जाके होगा. तो आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं. और जो आपने क्लास 12 में पढ़ा वही तो आ रहा है, कोई बाहर का तो आ नहीं. Actually, the thing is like term 1 was objective, term 2 is subjective. Now again objective. The like preparing, you are right, but not everybody or not all students, they are alike. They can take up the thing. So that was the concern. Anyways, thank you very much. Ishan Gupta from Shah International School, you may ask your question. Ma'am, my question is, does CUET make boards irrelevant, ma'am? Because everyone is saying it nowadays. Sorry, Ishan, what is the question? My question is, does CUET make boards irrelevant? Oh, will the CUET make boards irrelevant? Is that your question? Yes, ma'am. No, I don't think so, Ishan, not at all. Because जो आप बोर्ड में पढ़ रहे हैं वही तो आ रहे जो. So you see, I mean, as far as I'm a person of assessment also, I think the class 12 boards were based on achievement. Now this is a selection process. So whatever you've studied in class 12, exactly the same thing is going to be asked in a CUET. और क्लास 12 का तो बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट बेस्ड टेस्ट होता था और ये तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर है. आप एलिमिनेशन का क्राइटेरिया भी नहीं है, आप एलिमिनेट भी नहीं हो रहे हैं. इतना ज्यादा जब आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी दी होती है किसी भी एडमिशन प्रोग्राम में, तो इट इज मोर इक्विटेबल, इट इज मोर सिलेक्टिव इन इट्स प्रोसेस. सो एंड ऑफ कोर्स विद यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इफ यू आस्क मी, the admission is you have to pass class 12th examination, and some of the other universities are even considering some weightage of class 12th examination. So it's not going to make class 12 boards redundant at all. I don't think so. In fact, it is going to strengthen the class board. वहाँ आपको परफॉर्मेंस के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी. आप उसमें कॉन्सेप्ट पढ़िए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करिए. तो जो पूरा साल अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो एक टेस्ट देना इतना कोई मुश्किल बात नहीं है. It's going to be objective, right? Siddharth Kaur from Shah International School, you may ask your question. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I wanted to ask, are there any sample papers available for the CUET paper? Yes, Siddharth, very soon they will be available on the NTA website. They are in the process of creating mock tests and mocks and centers, as I just said, TPCs. It's on the process. Very soon that will be live, and you will get some helpful questions and mock tests on the website of it. Okay, ma'am. Thank you. Mansi Shah, PGT Commerce, Shah International School, you may ask your question. Mansi Shah. Neelu Chawla,
Shah International School, you may ask your question. Dr. Devyani Mule, you may ask your question. Good afternoon, everyone. My question is, there was an educational educational concession certificate. So there is no new format given in the website. So the format should be the old one as it was given earlier, or any new format is going to be uploaded by the university. Ma'am, which educational certificate of Delhi University or of NTA? That is, we have to apply under the Gallantry Awards, Ministry of Home Affairs. So if the child comes under this, has to apply under this division. So any new educational concession certificate format is there, or we have to use the old one? Ma'am, for CW category, Delhi University is not given any format right now. But if you look at the Bulletin of Information of NTA, there is a format. Please look at it. I don't know if it's an old one or a new one given by NTA. I think it is the same one. Just look at the Information Bulletin of NTA. There they have mentioned about the Education Concession Certificate. It is there. Delhi University has not taken out any format till now. Okay, ma'am. Thank you. Yearn to Learn, you may ask your question. Thank you, Ms. Ananya, and good afternoon, everyone. Dean Madam, thank you so much for throwing light on it. You were very comprehensive. My concern is there, Madam, that there are a lot of students in grade 12 who are under great stress and anxiety. They were the ones who had to, bear the pandemic stress because the pandemic started soon after they entered grade 10. In 11th also, they had to hang between online and offline. Now in 12th, they had experiment examination of term 1 and term 2. And now for university also, they are going to have CUET. So ma'am, don't you think we could have postponed CUET for some time and not make the same batch suffer? Because stress levels of the same batch are surging. So I have a great concern regarding this because आपने ये भी बोला कि term 1 का भी syllabus include होगा. बच्चे कहीं ना कहीं फ्री हो चुके थे कि term 1 उन्हें नहीं पढ़ना है, term 2 पे focused हैं. And there are no mock tests or sample papers available so far. And exams would end, ma'am, on 15th of June. So do you think that it is fine for them? It's justified. Ma'am, I don't have. I don't have any views on this. My thinking doesn't matter. It is a government policy, and we are honoring it. And I feel that there is a lot of merit in going for one test because for years I've been involved with admission for several years now, and many students used to suffer because of disparity in the boards. And I think this is one of the reasons why there was no option. In fact, I think it's a very welcoming step to only go for one test. Yes, it is for the first time. Whenever things get introduced for the first time, there are teething problems for all of us. We are also trying to find out ways in it. NTA is also trying to find out ways in it. And all the students are also trying to find out the ways. Being a transition batch, there will be some issues, but I think collectively we can solve it. But having said that, why I say it is a welcoming step, because students who used to not get good marks, and some other states board, or where the moderations were done in a very skewed manner, students from those boards used to take admissions and are meritorious students could not come through. I think that process will now get normalized and standardized. So to that effect, a one test policy was a call of nation. So I solely promote this, that one test policy, it had to come sooner or later. It's just a matter of chance that we have. In fact, this was due last year, but last year, because of many other COVID situations, the government could not propose it, could not do it. Last year also, we had done a lot of homework with respect to CUET. So ये बहुत सालों से process में था. If you read not even this education policy, ये 1986 की national education policy से है
कि एक टेस्ट Right, ma'am. That's right, ma'am. Since 1986, you have particularly mentioned. I'm happy because now is the question of timing. That's what I was saying. कि 1986 से है तो why this batch only? इसी batch का anxiety level इतना बढ़ रहा है. And ma'am, as you very well said yourself, कि it is because you want to bring, if I got it right, parity amongst the boards. तो आई थिंक बोर्ड्स को अगर अप्रोच करके इसके अकॉर्डिंग बोर्ड का करिकुलम बनवा देते तो वो इजी रहता मैम बच्चों के लिए. Ma'am, let's talk about CUET. It's now launched and we are going for it. Thank you for answering. Pritesh Punj, you may ask your question. Good afternoon, ma'am. Ma'am, I wanted to ask that what all universities are participating in CUET? Like, what universities are taking admission through this exam? All central universities are going to, they are not taking the exam. All central universities are going to consider only the marks of CUET. Approximately 22 state universities have also joined. So in all, 66 universities NTA is already listed. Go to the website of NTA and वहाँ पर again जहाँ syllabus है वहाँ पर list of universities दिया हुआ है. Private universities रोज जुड़ रही हैं उनके साथ universities. तो अभी मेरी जानकारी में तकरीबन 70 यूनिवर्सिटीज जुड़ चुकी हैं और शायद और जुड़ रही हैं. तो आप उनकी वेबसाइट पे देखिए. Okay, ma'am. Thank you so much. Hebu Abhyang, please ask your question. Yeah, good morning, ma'am. I want to pursue BA Political Science Honours in Delhi University. So, is it necessary that I have to give the General Knowledge Test, Section 3? Okay, and ma'am, if the general test is not important for BA Pol Science, but I still give the exam and I score less marks, so will it affect my overall CUET marks obtained? Your CUET marks will be based on the subjects that you choose and the test that you give. So I didn't understand what do you mean by your marks will be changed? Ma'am, in the sense, if I give the general knowledge test and if I get less marks in the test, we're not going to consider general knowledge. See, these are program specific. For BA Honours Political Science, we don't need your general test marks. We are not going to consider. Even for the history and for the sociology, the general test is not required. Okay, thank you so much, ma'am. Kashika Sharma, you may ask your question. Good afternoon, ma'am. I just wanted to ask, is there any provision for candidates who cannot attempt CUET examination on the scheduled date? I didn't. So you're talking about if the person missed to give CUET exam? Is that what the question is? Yes, ma'am. Why? I mean, it's 3 months down the line. Why are you even talking about this? She's saying if somebody is not able to make up on that particular day because of some reason, then what will happen? I mean, then she has to wait for one complete year, entire year. This is, I mean, I should take this analogy for class 12 board examination. We make all attempts to reach the center on time and we are class 12 schools also. So why, I mean, this is, or I think this is an NTA-based question, but I feel funny to even answer this, that why are we talking about, now that you're already missing a test, we're talking about something in future and you're getting ready for missing a test. Let's talk about taking the test. Let's talk about reading. Yeah, now let's have only 2 questions, last 2 questions. Yes, please, Taruna. So one question which Year to Year Learn has written, ma'am, I mentioned that chatbot is not available today. It's Saturday. It's working only on the working day. So if you pose your question on Monday, you will get an answer. And today, because these are being handled by our students, and this is only. Thank you for answering that, ma'am. Actually, it wasn't mentioned on the chat board that it's working on Monday to Friday only. Thank you. Ma'am, can I ask a question? Ma'am,
I think as far as my knowledge, IP University is not participating in this. Ma'am, I don't know. Ask Okay. As far as my knowledge, they are not participating. So my question is this, that is there any quota which I could come to know that there is no reservation as all state universities are having for their own students. But Delhi students, they are the sufferers. Delhi University में भी उनके लिए कोई कोटा नहीं है और IP University CUET में पार्ट ले नहीं रही है. So बताइए अब दिल्ली वाले बच्चे क्या करेंगे? ये तो बहुत ही बढ़िया बात होगी आपने जो बोली है. अगर IP वाले नहीं कर रहे तो पीछे यर्न टू लर्न ने बोला था कि हमारे 12th के बोर्ड नहीं हो रहे तो दिल्ली के बच्चे वहां जाके एडमिशन ले लिए. बहुत बढ़िया बात है, मेरिट में वहां जाके एडमिशन ले ली. नहीं मैम, but no, it is again that not like convincing answer. I'm not authorized to answer anything from any other. Okay, ma'am. Thank you. Hitakshi Sikri, you may ask your question. Good afternoon, ma'am. Ma'am, will there be any interview also for the purpose of admission to UG courses in Central University in addition to store secured in CUET? So only this course secured in CUET will be considered, except wherever there is a performance based. For example, there would be an interview, but जहाँ जब performance based है, for example, music है, physical education के program है, या ECAT category या sports category, वहाँ पर कुछ performance based trials हो सकते हैं, लेकिन interview only CUET. Okay, ma'am. Thank you. I believe all the queries have been taken up. I now welcome Professor Gurpreet Singh Tuteja, Joint Dean of Students' Welfare, University of Delhi. Dr. Tuteja is a professor of mathematics at Zakir Hussain Delhi College. He is presently teacher in charge of Department of Mathematics and Joint Dean of Students' Welfare, University of Delhi. Professor Tuteja has over 25 years of teaching and research experience and has relentlessly worked in popularizing computer algebra system CAS and R. He is a Microsoft certified software developer and an associate member of the Insurance Institute of India. He served in SGT University Gurugram as Pro Vice Chancellor and has also served as HOD of Mathematics in Muscat, Oman. Professor Tuteja has published several papers in national and international journals and is also the author of the popular book Practical Mathematics Using Maxima. I would now request Professor G.S. Tuteja to kindly propose a vote of thanks. Thank you, Ananya. Thank you so much. Good afternoon, everyone. It has been such an honor to be part of this wonderful event. On behalf of the Zakir Hussain Delhi College, I would like to extend my heartfelt gratitude to esteemed guest of honor, Professor Pankaj Arora, Student Welfare, Dean Students Welfare, Professor Narendra Singh, Principal Zakir Hussain Delhi College, Professor Haneed Gandhi, Dean Admissions. Special thanks to you, ma'am. You have been great source of, encouragement, and you have given a lot of information to the students, which I feel that it will be useful. Your words of wisdom have truly enlightened us. The information about CUET and admission in Delhi University was really very comprehensive. All of you have been generous enough with your time, and I'm sure that you must have been, students must have been benefited with this knowledge and discussion here. I would be failing in my duty if I don't thank my fellow colleagues in different committees like IT, NSS, website, and media, who have not only helped in organizing this program, but also helped us in reaching out to different schools located in and out of Delhi. Ma'am, we are streaming this program on 2 channels of YouTube simultaneously. My special thanks to convener of these committees, Professor Mukesh Jain, Dr. Abdullah, and Dr. Nidhi for their immense support. The admin staff, including principal's office, were kind enough to do the task without any time constraints. Last but not least, I thank my colleague, teachers, students from various schools and colleges and their parents for joining us, even on Saturday, which is supposed to be a rest day for them, but they are working hard. And you see, our principal is also in the seat, in the chair today, even if it is a Saturday. So I thank you all. I wish you a very happy and comfortable journey of admission
in the University of Delhi. Jai Hind. God bless. Thank you so much. Thank you very much indeed, Professor Tuteja. That brings us to the end of the proceedings. As CUET would lead to a paradigm shift in undergraduate admissions at the national level, we hope that this open house session provided understanding and clarity to the members of the audience on various aspects of CUET. On this note, we conclude our open house session on CUET. Have a wonderful day ahead. Thank you, Ananya. Thank you so much. Thank you, sir. You have been great. Thank Thank you, you so much. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Dean Admission, thank you. Thank you, Thank you. Principal, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. सभी को नमस्कार। Namaskar. Sir, link